आप जानते हैं कि मैं रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस पोस्ट करता हूं अपने इस चैनल ट्रेड एंड ग्रो पर। और जो एनालिसिस है वो आपको कम्युनिटी टैब पे मिलता है। आप रोज़ मेरा एनालिसिस कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं और वो कितना परफेक्ट होता है। पिछले 2 साल के वीडियोस रेगुलरली आपको इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि उसकी परफेक्शन का क्या लेवल है। आज फिर एक और वीडियो ऐड कर लीजिए उस परफेक्शन के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। आज मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी वो आज की ट्रेडिंग के लिए क्या प्रेडिक्शंस दी थी और उन पे कैसे आपको काम करना था, कैसे प्रॉफिट को जनरेट करना था, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। और इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन का बटन है, इस ज्वाइन बटन से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के बारे में अगर डिटेल चाहिए तो इस मेंबरशिप टैब से आप पूरी डिटेल मेंबरशिप की ले सकते हैं। हाय, मैं आपका होस्ट योगेश वत्स स्वागत करता हूं आपका ट्रेड एंड ग्रो चैनल पे। चलिए डिस्कस करते हैं कल की प्रेडिक्शंस जो मैंने आपको दी थी। जब निफ्टी के बारे में भी आपसे डिस्कस करता हूं तो होता क्या है कि एक वीडियो 35 मिनट का 25 से 35 मिनट का बन जाता है, जबकि पिछले वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों करता हूं। अगर आपको दोनों की प्रेडिक्शंस चाहिए और आप चाहते हैं कि वो 30-35 मिनट आप बियर कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मैं नेक्स्ट में इस बारे में फिर इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा। अब देखिए, जो मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर अपना एनालिसिस पोस्ट किया था, पहले तो उस एनालिसिस को डिस्कस करते हैं कि वो एनालिसिस मैंने क्या पोस्ट किया था। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एनालिसिस मैंने 21 घंटे पहले पोस्ट किया था, राइट। और इस एनालिसिस को अब मैं आपको सुनवाता हूँ कि इसके अंदर क्लिप के अंदर मैंने क्या आज की प्रेडिक्शंस दी थी और उन प्रेडिक्शंस के हिसाब से मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। फिर एक ऐड कर लीजिएगा आज का ये वीडियो एक परफेक्ट एनालिसिस के लिए, परफेक्ट मैचिंग के लिए, जबकि रोज के वीडियोस जो मैं आपको भेजता हूँ वो सारे इसी लेवल को मेंटेन करते हैं, वो कभी भी इधर से उधर नहीं जाता एनालिसिस। लीजिए, ये आपके सामने आज का एनालिसिस आएगा। Monday, I made a line, a dashed line here. This line is very important. What you have to see at this line till the price is below this line on opening. First condition is for the opening. You will not take any upside long, right? Upside will only be taken when this dashed line is crossed and it makes support like this, right? If it makes support, if it makes some sort of was 5-minute intraday techniques testing, then you take position with that setup and your target would be the halt number 2. What I feel is that since the XS Nifty closed down, so it may possible that a gap down or a flat opening would be seen this day. If the price moves with momentum, then you might see this level. Otherwise, what will happen, price might come to this level and somewhere between this limit it will take support. Now in this case, how would you take your position? See, if the price opens gap down, say at this level, you see the momentum. If you find the momentum towards downside, then you can take your position on the very first candle, but that is your target point. What I prefer is that you need to see momentum. If you do not see momentum after opening, then don't take shots. Then again wait for some testing, some clues, because this move can be a trapping move. I do not expect the market moving from this level to downside unless this condition is fulfilled. I have given the condition of 1 hour time frame on this halt number 1. This is till this is not fulfilled, you cannot see price moving to downside. So price will remain in range. Upside, I have already discussed that if the price opens gap up and takes support of this dashed line, then you see upside move towards halt number 2. And if that move further crosses and fulfills the condition of taken out on 15-minute time frame to upside, then you would see the more
upside move. Till this action is missing, please don't take positions to upside. Right? This is how your complete day trading would go, and this EMA would definitely react as good resistance. Right? You have to find your trades near all halts, whatever the halts I made, 3 halts. You have to find your trades on these halts by putting the testing conditions. Without testing condition, what will happen? You will not be able to get the right direction and would be trapped somewhere in that move. So my recommendation is always use these halts for your positions. See, if price opens flat and takes resistance, right, of this halt, it means it is a clear indication that price would move towards downside. On the contrary, if the price takes support after crossing, see, price opens gap down and recovers and crosses this level, then it is the clear signal that price would move towards upside. These are the conditions which I discussed with you. If you talk about my bias, my bias for this day is not downside. What I feel is that if the price opens downside, it would recover, right, or it would be remain range bound. I'm not finding any good move towards downside or any good move towards upside. This is how Nifty will go. तो आपने वीडियो देखा जिसके अंदर मैंने कल जो प्रेडिक्शन की थी निफ्टी के लिए, वो प्रेडिक्शन क्या की थी कि ये जो लेवल है, आपको इस लेवल को देखना है। जब तक प्राइस इस लेवल से ऊपर नहीं जाता, आप लॉन्ग की तरफ ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके अंदर मैंने क्लियर बताया था कि मेरा बायस जो है वो रिकवरी यानी अपसाइड का बायस है, डाउनसाइड मैं नहीं देख रहा ज़्यादा और ना ही मैं अपसाइड ज़्यादा देख रहा हूँ। प्राइस इस टारगेट जो दिया था मैंने, ये हॉल्ट का टारगेट दिया था, और इस हॉल्ट पे टारगेट के बाद मैंने क्या बोला था कि आपकी रिकवरी आ जाएगी, और सेम रिकवरी आपको देखने की मिल रही है। और मैंने ये बोला था कि ना आपका प्राइस मेरे को नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, ना प्राइस मेरे को बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस रेंज बाउंड हो जाएगा और ये रिकवरी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेम रिकवरी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, मुझे कैसे पता होता है कि प्राइस गैप डाउन होने के बाद में कैसे रिएक्ट करेगा? क्यों मैंने हॉल्ट नंबर 1 एग्जैक्ट उस लेवल पे बनाया जहां पे प्राइस ने बिल्कुल सही सपोर्ट लिया। इस इतनी एक्यूरेसी के साथ मैं मार्किंग कैसे कर पाता हूं? और ये मार्किंग एक दिन नहीं करता, रेगुलर बेस पे पिछले 2 साल से रेगुलर एवरी डे करता हुआ आ रहा हूं। किसी दिन ये मार्किंग फेल नहीं होती है। उसके अलावा जो ट्रेड आइडिया, जो प्रेडिक्शंस मैं करता हूं, आप उनकी एक्यूरेसी भी देखिए कि जो प्रेडिक्शन की है बिल्कुल मार्केट वैसे ही चलता है। उसके अलावा मार्केट कुछ नहीं होता। जब मैंने बायस की बात की तो मैंने क्लियर बताया आपको कि मेरा बायस जो है डाउन साइड का नहीं है। मैं जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैं रिकवरी देख रहा हूं, और ये देखिए रिकवरी, और वो रिकवरी जो होगी रेंज बाउंड होगी, और ये देखिए सारी रेंज बाउंड रिकवरी चल रही है आपकी। इससे ऊपर नहीं जा पाया मार्केट, इससे नीचे नहीं जा पाया मार्केट, सारा कुछ आपको क्लियर बताया। जबकि गैप डाउन ओपन के बाद में कौन अंदाजा ला सकता है कि प्राइस एग्जैक्टली यहां पर सपोर्ट लेगा? अरे भाई, कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट यहां भी आ रहे होंगे, कुछ यहां भी आ रहे होंगे, बट कुछ यहां भी आ रहे होंगे। मैंने एग्जैक्ट यहां ही क्यों बनाया, और प्राइस ने एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस क्यों चूज किया? तो डेली ये इंफॉर्मेशन अपने मेंबर्स को मैं देता हूं। आप भी इस एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहते हैं, इस एक्यूरेसी को यूज करना चाहते हैं, इस एनालिसिस को यूज करना अपने ट्रेडिंग के अंदर, तो आप कम्युनिटी टैब के द्वारा ये सारा एनालिसिस रोज देख सकते हैं। अब देखिए, इन प्रेडिक्शंस के बाद में इस पे काम कैसे करना था, इसको डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट जो आपका बना, जब आपका प्राइस गैप डाउन हुआ, तो नेचुरली ये वाला जो पॉइंट आपका बनेगा वो बन जाएगा टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट, राइट? क्योंकि वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के हिसाब से जो पहला पॉइंट बनता है वो बनता है टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट। जो लोग वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को नहीं जानते, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि ये वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स जो हैं ट्रेडिंग के अंदर परफेक्ट टेक्निक्स हैं, जो मैंने अपने कई साल के अनुभव से डिज़ाइन की हैं, और उसके लिए आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं एक सजेस्टेड प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उस सजेस्टेड प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी मेरे वीडियोस हैं, आप उनके थ्रू अल्टीमेट से शुरू कीजिए, सारी अल्टीमेट सीरीज देखिए, और आपको क्लियर पता चलेगा कि वट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स कैसे अप्लाई होती हैं और आपको उनको कैसे करना चाहिए। और डेली मैं उनको डिस्कस करता हूँ।
अपनी एनालिसिस के हिसाब से कि जो एनालिसिस में जो प्रेडिक्शंस मैं भेजता हूं अपने मेंबर को, वो मेंबर्स कैसे उनको यूज करना चाहिए ताकि आप भी उससे सीख सकें। तो देखिए ये टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट यहां पर बनाया। टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट बनने के बाद में क्या हुआ कि प्राइस ने यहां पर फर्स्ट टेस्टिंग कर ली इसकी, राइट। फर्स्ट टेस्टिंग करने के बाद में प्राइस ने ये आपकी सेकंड टेस्टिंग कर ली, राइट। अब आप यहां पर अपना एक ये डालिए कि ये प्राइस की ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद में प्राइस ने इसको ऊपर निकाल लिया। अब जब ये फर्स्ट टेस्टिंग यहाँ पर प्राइस की हो गई तो फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में आपको अपना ट्रेड मिलेगा तभी जब सेकंड टेस्टिंग आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। तो यहाँ पर कोई भी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सेकंड टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, सेकंड टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से आई है। और जब सेकंड टेस्टिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ से आ रही है तो आप उसमें क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सेकंड टेस्टिंग के बाद में इस एरिया के अंदर आपको अपना ट्रेड ढूंढना है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर सेकंड टेस्टिंग के बाद में कि यहाँ पर जो पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो सारा का सारा पैटर्न यहाँ पर बना है, ये बेसिकली यहाँ कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बना है कैंडलस्टिक का। जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि ये पॉइंट जो है एज अ रेजिस्टेंस का सपोर्ट काम कर रहा है, राइट। ये भी पॉइंट यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो ये कंप्लीट पॉइंट एज ए सपोर्ट काम कर रहा है यहाँ पर। और इसकी सेकंड टेस्टिंग के बाद में आपने क्या देखना है कि प्राइस जैसे ही प्राइस के अंदर मूवमेंट आती है तो आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस इस पॉइंट का रखना है क्योंकि सेकंड टेस्टिंग हो चुकी है। और आपको पता है कि WATS 5 मिनट इंटरडे टेक्निक्स के बाद में आपको कुछ लॉजिक्स चाहिए अपनी एंट्री करने के लिए। तो लॉजिक पहली बात यह है कि सेकंड टेस्टिंग हो चुकी है और सेकंड टेस्टिंग के बाद में प्राइस ने ये सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट किया है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये बाइंग दे दी है, तो आप इस जगह पर अपनी पोजीशन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रखेंगे और नेचुरली टारगेट आपका क्या होगा, 171 EMA का। हालांकि एग्जैक्ट टारगेट 171 EMA पे मार्केट नहीं पहुंचा और पहली कैंडल में ही उसने सेलिंग दे दी। तो जब आपने यहाँ एंट्री की है और आपके पास 4 कैंडल अपसाइड की बन चुकी हैं तो आपको कौन सी जगह से सेलिंग मिल रही है, इस पॉइंट से सेलिंग मिल रही है, तो आप अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एंट्री आपकी बनती है एक अपसाइड के लिए। अब देखिए डाउन साइड के लिए इसमें कैसे एंट्री करनी थी कि डाउन साइड के लिए क्या पॉइंट बनाया। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका बना, राइट, ये पॉइंट आपका बना फर्स्ट टेस्टिंग का पॉइंट। क्यों बना, क्योंकि चेंज ऑफ पोलैरिटी का रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ये आपका चेंज ऑफ पोलैरिटी का रूल अप्लाई होगा और फर्स्ट टेस्टिंग इसको गिना जाएगा, ना कि टेम्परेरी रेजिस्टेंस टेस्टिंग पॉइंट गिना जाए। तो सेकेंड टेस्टिंग आपकी ये आ गई, राइट। अब सेकंड टेस्टिंग के बाद में आपको क्या ढूंढना है, अपना ट्रेड ढूंढना है डाउन साइड के अंदर। तो डाउन साइड का कौन सा एरिया, ये एरिया डाउन साइड में ट्रेड का है। बट यहाँ पर बनने के बाद में मार्केट क्लोज हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई आपको ट्रेड डाउन साइड का नहीं मिल पाया। अब आपको जो ये अब आप ये बोलेंगे कि सेकंड टेस्टिंग के बाद में यही वाला ट्रेड मिला, ये आपने कर लिया। अब कुछ लोग चाहेंगे कि इसके बाद में भी कोई ट्रेड निकल जाए, इस लेवल का जो ट्रेड यहाँ पर है ये भी निकल जाए। तो ये अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपको मेन टेस्टिंग्स बता रहा हूँ, इसलिए ये ट्रेड आपको सब टेस्टिंग के अंदर मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड आपको सब टेस्टिंग में मिलेगा। अब सब टेस्टिंग में ये ट्रेड कैसे निकलता है वो मैं आपको आज डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि आप अभी उसको इंप्लीमेंट ना कीजिए जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाए मेन ट्रेंड को निकालने में। तो अब सब ये वाला आपका पॉइंट बन जाएगा टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट, राइट। अब टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट के बाद में आपका क्या बनेगा, ये आपका फर्स्ट सब टेस्ट बन जाएगा, राइट। फर्स्ट सब टेस्ट के बाद में ये आपका पॉइंट सेकंड सब टेस्ट का बन जाएगा, राइट। सेकंड सब टेस्ट का कैसे बनेगा कि देखिए ये आपका यहाँ पर सपोर्ट आ गया, इसी तरह से ये आपका सपोर्ट आ गया, तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया, ये आपका सपोर्ट आ गया, सेकंड सब टेस्ट बन गया। अब आपको ट्रेड कहाँ मिलेगा, सब टेस्टिंग के बाद में, यानी इस एरिया में आपको ट्रेड मिलेगा, राइट। जब इस एरिया में आपको ट्रेड मिलेगा तो आप क्या रखेंगे, इस लेवल का आप स्टॉप लॉस रखिए और यहां पर आप एंट्री कीजिए, इस लेवल पर आप एंट्री कीजिए, राइट। जब इस लेवल पर एंट्री करेंगे तो ये 3 कैंडल का आपको ट्रेड मिलेगा, जबकि ये ट्रेड आपको मिल सकता था 171 EMA का, बट प्राइस पहले ही यहां पर फिजल आउट हो गया। तो आपको यहां पर ये निकलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये आपका स्टॉप लॉस अगर आपने रखा होगा तो ये आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट हो जाएगा, आप माइनस में चले जाएंगे। बट अब ये ट्रेड जो मिलेगा, ये ट्रेड सब टेस्टिंग का ट्रेड है, इसलिए हर आदमी नहीं कर सकता इस ट्रेड को, वही कर सकता है जो सब टेस्टिंग के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। अदरवाइज जो आपके लिए ट्रेड बताया मेन टेस्टिंग का वो सिर्फ यही ट्रेड है, राइट। तो आपने देखा कि जो मैंने प्रेडिक्शंस बताई, ठीक मार्केट ने उसी हिसाब से बिहेव किया, उसी पॉइंट के ऊपर उसने सपोर्ट लिया, उसी पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद में ये ऊपर चला गया और पूरे दिन वो रेंज बाउंड रहा, राइट। तो ये प्रेडिक्शन मैंने कल की थी
निफ्टी के लिए जो आपने यहाँ पर देखी, बैंक निफ्टी के लिए भी प्रेडिक्शंस मैंने की थी, बट बैंक निफ्टी मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक नई इंफॉर्मेशन के साथ कल आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।